Hello everyone. In today's lecture we will discuss analysis of variance. Short में इसे हम बोलते हैं ANOVA. So this technique was invented by R.A. Fisher and that is why often referred as Fisher's ANOVA as well. And it is a statistical technique that is used to check if the means of two or more groups are significantly different from each other. Like हमारे पास दो ग्रुप हैं, ग्रुप A और B, दोनों का इंडिविजुअल हम मीन लेंगे एंड उन दोनों में सिग्निफिकेंटली उनके मीन्स में क्या डिफरेंस है वो हम चेक करते हैं. So ANOVA checks the impact of one or more factors by comparing the means of different samples. तो different अगर हमारे पास samples हैं तो एक से ज़्यादा और factors का impact check करता है ANOVA. So it is similar in application to techniques like T or Z test. In that it is used to compare mean and relative variance between them. So them यहाँ पर किस लिए use किया हुआ है? Different samples of different groups. Or in other words, we can say that ANOVA is an extension of t-test and z-test. So ANOVA test is a way to find out if survey or your experiment results are significant or not. तो significant का क्या समझते हैं हम? Significant means whether we need to accept the null hypothesis or not. So in other words, they help you to figure out if you need to reject the null hypothesis or support the alternate hypothesis. So the null hypothesis in ANOVA is valid when all the sample means are equal. ये हमने previous lecture में देखा था. अगर अब अपने पास तीन ग्रुप हैं, ग्रुप A, B, C और तीनों का जो मीन है mu1, mu2 और mu3 है, अगर mu1 equals to mu2 is equal to mu3 है, then all sample means are equal. तो वो हमें it means कि there is no significant difference between them and वो हम उस केस में we will accept the null hypothesis. On the other hand, the alternate hypothesis क्या कहता है? Alternate hypothesis is valid when at least one of the sample means is differ or different from the rest of the sample means. अगर तीनों equal नहीं है, अगर एक का value भी different है, तो then we will support the alternate hypothesis. So basically हम क्या कर रहे हैं? We are testing groups. ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास और उन ग्रुप्स से क्या करना है? ग्रुप्स का हम देख रहे हैं इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, और वो डिफरेंस किसका देख रहे हैं? मीन एंड वेरिएंस का. लाइक फॉर एग्जांपल, अ मैन्युफैक्चरर हैज टू डिफरेंट प्रोसेसेस टू मेक लाइट बल्ब्स. सो the manufacturer wants to know if one process is better than the another. So ये हम इसमें देख रहे हैं. Next is assumptions for ANOVA. So to use the ANOVA test, there are some assumptions. The first one is each group sample is drawn from a normally distributed population. The second one is all populations have a common variance. Variance same होना चाहिए. And all samples are drawn independently of each other. And the last one is within each sample observations are sampled randomly. तो ये 4 important assumptions हैं. इस पर based objective type questions आ सकते हैं. So ये तो थे कुछ बेसिक्स ANOVA के बारे में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इन्हीं पॉइंट से छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं. नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, प्रीवियस चैप्टर में जाते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, जहां हमने जेड टेस्ट और टी टेस्ट देखा था. सो जेड टेस्ट test a claim about a population mean with a sample mean where variance is known, and z-test के केस में sample size जो था वो large होता था. next था t-test, सेम है, टेस्ट अ क्लेम अबाउट अ पॉपुलेशन मीन विद अ सैंपल मीन वेयर वेरिएंस यहाँ पर क्या है? अननोन रहता था एंड सैंपल साइज शुड बी लेस देन 30. So why not just we use multiple t-test, instead we go for ANOVA. So इसके पीछे एक रीजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये जानना. So t-test is not reliable in cases where there are more than 2 samples. 2 samples तक तो ये ठीक रहता है, उसके बाद रिलायबल नहीं रहता है. वाई? बिकॉज इफ वी कंडक्ट मल्टीपल टी टेस्ट फॉर कंपेयरिंग मोर देन 2 सैंपल्स, इट विल हैव अ कंपाउंड इफेक्ट ऑन द एरर रेट ऑफ द रिजल्ट. और वो जो एरर है उसे हम डिनोट करते हैं टाइप 1 एरर से, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर. सो द लेवल ऑफ रिस्क फॉर मेकिंग अ टाइप 1 एरर इज सेट बाय द अल्फा लेवल. ठीक है, अल्फा से हम डिनोट करते हैं टाइप 1 एरर को. एंड विद एनोवा somehow we can maintain that value of alpha, that is 0.05. so common values जो अल्फा की हमने देखी थी, that is 0.05 and 0.01.
सो नेक्स्ट है व्हाट डज वन वे और टू वे मीन। तो एनोवा में आपने देखा होगा वन वे एनोवा एंड टू वे एनोवा, ठीक है, तो दोनों का अलग अलग टेबल है। तो व्हाट डज इट मीन? सो वन वे और टू वे रेफर्स टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन और टू मीन्स यहाँ पर किस लिए रेफर कर रहे हैं वो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए। तो वन वे है मीन्स वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ टू लेबल्स। अभी फैक्टर्स और लेबल्स एनोवा में बेसिकली क्या होते हैं ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। So for example like brand of cereal, and two way में क्या होगा? टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। इट कैन हैव मल्टीपल लेबल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रांड ऑफ cereals एंड कैलोरीज। तो कैलोरीज में भी जैसे लेबल मल्टीपल लेबल्स की बात आई है, तो कैलोरीज में लाइक स्वीटेंड अनस्वीटेंड ब्रांड के लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हो जाएंगे आपके। तो ये आपका वन वे और टू वे मतलब हुआ। And two-way ANOVA is an extension of one-way. Like one-way classification can be like gender, political party, religion और age. कोई भी एक जो फैक्टर्स होगा उसके बेसिस पे हम देखेंगे। और टू वे में क्या होगा? इन्हीं जो ये फैक्टर्स हैं वो ग्रुप हो जाएंगे टू में। लाइक दो एक साथ फैक्टर्स को हम चेक करेंगे लाइक जेंडर एंड पॉलिटिकल पार्टी, जेंडर और एज एंड रिलीजन एंड एज। तो जब दो आप वेरिएबल्स को साथ में लेके चलेंगे तो वो टू वे हो जाएगा। एंड ईच क्लासिफिकेशन वेरिएबल इज नोन एज फैक्टर, ठीक है। जो कौन से फैक्टर्स हैं? ये जो मैंने आपको बोले, जेंडर है, पॉलिटिकल पार्टी है, रिलीजन है, एज है। तो अगर सिर्फ एक फैक्टर के बेसिस पे हम एनालिसिस कर रहे हैं तो वो होगा आपका वन वे। और दो फैक्टर्स को साथ में लिखा, दो फैक्टर्स, इट कैन बी जेंडर और पार्टी, जेंडर और एज, जेंडर, रिलीजन और एज, इट कैन बी एनीथिंग। तो वो हो जाएगा आपका टू वे। और ये जो क्लासिफिकेशन वेरिएबल है इनको ही हम बोलते हैं फैक्टर्स। एंड सो देयर आर टू फैक्टर्स ईच हैविंग सेवरल लेबल्स विद इन द फैक्टर। तो ये फैक्टर्स के अंदर भी काफी सारे लेबल्स हो सकते हैं, आगे भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। So the factors are called the row factor and the column factor because the data is usually arranged into the table format. Each combination of a row and column label is called a treatment. ये कीवर्ड जनरली अनुभव में आपने देखा होगा फॉर्मूलाज और टेबल में, तो वो ये वाला ट्रीटमेंट होता है। So next is groups or labels. So groups or labels are different groups within the same independent variable. For example, you are studying if an alcoholic support group and individual counseling combined is the most effective treatment for lowering the alcohol consumption. So we can split the study participants, जिन पर भी हम स्टडी कर रहे हैं उनको हमने तीन ग्रुप में या लेवल में डिवाइड कर दिया है। लाइक इफ दे नीड मेडिकेशन ओनली, इफ दे नीड मेडिकेशन एंड द काउंसलिंग ऑल्सो, एंड इफ दे नीड काउंसलिंग ऑल्सो। सो डिपेंडिंग ऑन उनका जो भी कंजम्पशन है उसके बेसिस पर हम उनको इन थ्री ग्रुप्स में से डिवाइड कर देंगे। एंड जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो होगा कि उनका पर डे कंजम्पशन कितना है। सो इस तरीके से ये ग्रुप्स और लेवल्स होते हैं। So next are types of ANOVA. So it can be one way analysis, two way and k way analysis. So in one way analysis, in this we compare more than three groups based on one factor. ठीक है, factor एक है, ठीक है, one way है। One way means factor is one, group can be three or more. So for example, if we want to compare whether or not the mean output of three workers is the same based on the working hours of the three workers. ओके, तो ये होगा आपका वन वे एनालिसिस। इसका लिमिटेशन क्या है? इट विल टेल यू दैट एटलीस्ट टू ग्रुप्स वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट इट वॉन्ट टेल यू विच ग्रुप्स वर डिफरेंट। क्योंकि हम यहाँ पर जैसे आपने देखा कि थ्री ग्रुप ले रहे हैं, तो ये दो ग्रुप के बारे में भी बता देगा कि वो दो ग्रुप अलग अलग हैं मीन और वेरिएंस के बेसिस पे, बट वो दो ग्रुप कौन से हैं वो ये नहीं बता पाएगा। टू वे में क्या होता है? व्हेन फैक्टर वेरिएबल्स आर मोर देन टू। यहाँ पे वन था इसलिए वन वे था, यहाँ पर फैक्टर्स वन से ज्यादा हुआ तो वो टू वे हो गया। देन इट इज सेड टू बी टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एंड फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन वर्किंग कंडीशन एंड वर्किंग आवर्स। यहाँ पे जो एग्जाम्पल था वो वर्किंग आवर्स के बेसिस पे था। यहाँ पर वर्किंग कंडीशन एंड वर्किंग आवर्स के बेसिस पर वी कैन कंपेयर वेदर और नॉट द मीन आउटपुट ऑफ द वर्कर इज सेम और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट है के वे एनालिसिस। व्हेन फैक्टर वेरिएबल्स आर के कैन बी एनी नंबर, ठीक है, देन इट इज सेड टू बी के वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस।
Next is the variability, that is divided into category between and within. The first we'll discuss the between group variability. So as the two samples overlap, their individual means won't differ by a great margin. Hence the difference between their individual means and grand mean will not be significant enough. तो इंडिविजुअल मीन क्या होता है और ग्रैंड मीन क्या होता है ये समझ लेते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज योर सैंपल 1 एंड दिस इज योर सैंपल 2. ठीक है. एंड हेयर इज द ओवरलैप एरिया. सो सैंपल 1 का अगर हम मीन लें, जो भी इसके डेटा पॉइंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, तो अगर हम उसे कंसिडर करें x1 बार एंड फिर सैंपल 2 का मीन लें और वो हमें उससे हमें डिनोट करें x2 बार से, तो व्हाट विल बी द ग्रैंड मीन? ग्रैंड मीन विल बी x बार इक्वल्स टू x1 बार प्लस x2 बार अपॉन 2. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर दो सैंपल्स हैं, वो कुछ पार्ट उनका ओवरलैप हो रहा है, तो ग्रैंड मीन और इंडिविजुअल मीन्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा. अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. इस फिगर में यहाँ पर क्या है, ये ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, इंस्पाइट ऑफ इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, मार्जिन है. तो इंडिविजुअल मीन्स विल ऑल्सो, इनके क्या होगा, इंडिविजुअल मीन्स विल ऑल्सो डिफर. द डिफरेंस द बिटवीन द इंडिविजुअल मीन एंड द ग्रैंड मीन, यहाँ का x1 बार एंड x2 बार, ऑफकोर्स क्योंकि कुछ वैल्यूज यहाँ पर कॉमन है, इसलिए यहाँ पर ये x1 बार एंड x2 बार भी क्लोज, नियर टू क्लोज होंगे, उनका वैल्यूज ज्यादा वेरिएबल नहीं होगा, गैप नहीं होगा. या बट यहाँ पर कुछ वैल्यूज क्योंकि काफी डिफरेंस आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर इंडिविजुअल मीन भी डिफर करेगा एंड ऑफ कोर्स इंडिविजुअल मीन डिफर करेगा तो फिर ग्रैंड मीन भी आपका डिफर करेगा, तो वहां पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा सैंपल्स के बीच में. So such variability between the distributions called the between group variability. It refers to the variations between the distribution of individual group or levels and as the values within each group are different. Okay. नेक्स्ट है आपका विद इन ग्रुप वेरिएबिलिटी. तो ये क्या कहता है, फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द 3 सैंपल्स एज द स्प्रेड ऑफ ईच सैंपल इज इंक्रीज देयर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरलैप. ठीक है, यहाँ पे काफी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरलैप हो रहा है एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ बिग पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द स्प्रेड. यहाँ पर हम सैंपल 1 है तो सैंपल 1 का देखेंगे मीन, सैंपल 2 के लिए एंड सैंपल 3 के लिए. नेक्स्ट फिगर में ये क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पर क्या है, वेरिएबिलिटी कम है, वही 3 सैंपल्स हैं. ऑल्दो मीन ऑफ द सैंपल्स आर सिमिलर टू द सैंपल्स इन द अबाव इमेज. अगर सैंपल 1 की मैं बात करूं, इसका स्प्रेड ज्यादा है, x1 बार मीन है, तो यहाँ पर भी ये सैंपल जो 1 है, इसका मीन x1 बार ही रहेगा, ऑल्दो बस जो स्प्रेड है वो इसका कम है. ठीक है, क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स है, अगर आप उनको ज्यादा स्कैटर करोगे, फैलाओगे, तो उसका स्प्रेड बढ़ जाएगा. उसको अगर स्प्रेड कम होगा बट मीन आपका सेम रहेगा. सो यहाँ पर डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर these 3 samples belong to a big population, but यहाँ पर they seem to belong the different population. Okay. So such variations within a sample are denoted by within group variation and it refers to variations caused by difference within individual group. Individual group में जो difference आता है उसकी वजह से हम variations को देखते हैं और ये होता है आपका within group variability. Like ये जो फिगर है ये between के लिए है. पहला फिगर फर्स्ट सैंपल, सेकंड सैंपल, थर्ड सैंपल, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस, मीन डिफरेंस, सेकंड और थर्ड के बीच में एंड फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में डिफरेंस, तो ये बिटवीन है. ओके. विद इन में क्या होगा, इनके बीच में आपस में ही खुद में ही कितना डिफरेंस आ रहा है, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए. विद इन वेरिएबिलिटी विद इन ईच ग्रुप, ये अमंग ग्रुप्स एंड विद इन ईच ग्रुप, तो ये हुआ बिटवीन एंड ये हुआ विद इन. So the mathematical procedure behind the ANOVA test is as follows. तो सबसे पहले compute within group variance, also known as, इसको residual variance भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है. This tells us how different each participant is from their own group mean. अपने ग्रुप के मीन से वो कितना डिफर कर रहे हैं. ठीक है, कितना उनका मीन का वैल्यू कितना सिग्निफिकेंटली कितना डिफरेंट है, तो वो कंपेयर करना है. कंप्यूट द वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स पैनल ए. फिर ये बिटवीन ग्रुप्स का हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे एंड देन वेरिएंस और मीन कैलकुलेट करेंगे. देन प्रोड्यूस द एफ स्टैटिस्टिक्स रेशियो, वेरिएंस बिटवीन ग्रुप्स एंड वेरिएंस विद इन ग्रुप. ये एक फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसे हम आगे फिर से देखेंगे. एंड ध्यान क्या रखना है, मेन ये 3 ही स्टेप्स हैं. ये बात अलग है कि ये तीनों स्टेप्स जो फर्स्ट और 2 स्टेप्स हैं वो काफी
काफ़ी ब्रॉड वे में आगे हम सॉल्व करके देखेंगे इन्हें, काफ़ी लेंदी हैं। सो इफ एफ कैलकुलेटेड इज लेस देन एफ टेबुलेटेड, जो एफ स्टेटिस्टिक है इसका एक टेबल की फॉर्म में भी जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो एक उसका टेबुलर फॉर्म में वैल्यू होता है। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टेबुलेटेड वैल्यू, इट मीन्स दैट दे हैव नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एंड एफ इज लेस देन 1। ठीक है, ये कंसीडर किया जाता है। एंड अब कैलकुलेटेड वैल्यू अगर टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी है तो इट मीन्स दे हैव अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस एंड नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड एफ का जो वैल्यू होता है दैट इज ग्रेटर देन 1। सो एफ स्टैटिस्टिक होता है आपका विच मेजर्स इफ द मीन्स ऑफ डिफरेंट सैंपल्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट और नॉट इज कॉल्ड द एफ रेशियो। ये बताता है कि मीन्स ऑफ डिफरेंट सैंपल्स सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं या नहीं। अगर एफ की वैल्यू कम होगी तो इट मीन्स कि सैंपल मीन्स आर सिमिलर हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर जैसे जैसे एफ की वैल्यू बढ़ेगी मीन्स उनमें डिफरेंस बढ़ता जाएगा। एंड सिमिलर वैल्यूज है मतलब लोअर एफ रेशियो के लिए वी कैन नॉट रिजेक्ट द null hypothesis. So here is the formula, f is equal to between group variability upon within group variability. अब between group variability कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए न्यूमेरिकल्स पूरा कैलकुलेशंस हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड विद इन ग्रुप के लिए जो MSB है, B टेंड्स फॉर बिटवीन, W टेंड्स फॉर विद इन। ठीक है, तो ये है MSB's मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द ग्रुप्स, ये हो जाएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द ग्रुप्स। MST's मीन स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, जो रो और कॉलम फैक्टर हमने देखे थे, ये हो जाएगा मीन स्क्वायर ऑफ एरर सिग्मा स्क्वायर। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप अलग अलग नोट्स जब भी आप देखेंगे एनोवा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, तो इतना आसानी से समझ ही नहीं आता है क्योंकि काफ़ी लेंदी है और काफ़ी कुछ है समझने के लिए, तो उसको शॉर्ट में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने यहाँ पे कोशिश की है, जो आपको पॉइंट्स बताएं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस स्लाइड्स में वापस फर्स्ट स्लाइड में जाके देखना और समझने की कोशिश करना, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड फर्स्ट 1 वे एंड 2 वे के जो भी फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूला पर बेस्ड हम पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, पी वैल्यू पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। सो पी वैल्यू इज द स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट वुड लीड टू रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस if alpha is equal to 0.05 and the p-value is less than 0.05, then reject the null hypothesis. Similarly, if p-value is greater than 0.05, then fail to reject the null hypothesis. ये आप एक बस एक नोट की तरह ध्यान रख सकते हैं, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है। सो एनोवा से अगर हम देखें तो जो भी आपका नवंबर 20 का क्वेश्चन पेपर था उसमें कुछ डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे वेरिएबल से रिलेटेड, या फिर जो भी मैंने आपको टी टेस्ट और जेड टेस्ट से रिलेटेड जो भी आपको पॉइंट्स यहाँ पे कवर कराए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हो। एंड कुछ शॉर्ट न्यूमेरिकल्स टाइप आए थे बेस्ड ऑन फॉर्मूलाज एंड बेस्ड ऑन सम लिटिल कैलकुलेशन, सो दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर 21। यहाँ पे हमने बेसिक्स और इंट्रोडक्शन देखा एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम 1 वे और 2 वे का टेबल एंड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।